નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. વડોદરા શહેરની એમએસયુની આર્ટ્સ ફેકલ્ટીમાં 700 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ટરનલ પરીક્ષામાં નહીં બેસવા દેવામાં આવે. મળતી વિગતો પ્રમાણે ફેકલ્ટી સત્તાધીશોનું કહેવું છે કે વિદ્યાર્થીઓએ માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ, ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષા વખતે ગેપ હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ, થેલેસીમિયા સર્ટિફિકેટ જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો કહ્યા પછી પણ સુપરત નથી કર્યા. તેના કારણે તેમના બેઠક નંબર જનરેટ નથી થયા અને આ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા નહીં આપવામાં આવે, કારણ કે બેઠક નંબર અગર પરીક્ષા લીધા બાદ પરિણામ જાહેર કરવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. જોકે સ્પાર્ક ટુડેની ટીમ આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના ડીન સાથે ચર્ચા કરતા તેમને બાહેંધરી આપી છે કે એડિશનલ સેમિસ્ટર એક્ઝામ તરીકે જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓ ઇન્ટરનલ પરીક્ષાથી વંચિત રહ્યા છે તેવા વિદ્યાર્થીઓને ફરી એક્ઝામ આપવાની બાહેંધરી આપી હતી. છે કે બીએ પ્રથમ વર્ષનામાં 1500 જેવા વિદ્યાર્થીઓ છે. 1500માંથી લગભગ 500 જેવા વિદ્યાર્થીઓ એ એક્ઝામ આપવાથી વંચિત રહી ગયા છે અને એનો માત્ર એક રીઝન છે ફેકલ્ટીનો મેનેજમેન્ટમાં એવું છે કે વાત કરવામાં આવે તો જે 500 વિદ્યાર્થીઓ છે એ બહારના વિદ્યાર્થીઓ છે. ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સમાં બહારના બનતા વિદ્યાર્થીઓ જેમના માઇગ્રેશન બાકી હોય કાં તો ગેપ સર્ટિફિકેટનો ઇસ્યુ હોય. માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ એમનું લાસ્ટ ડેટ હતું 15 તારીખ અને વાત કરવામાં આવે છે ડીન મેમ જોડે અમે વાત કરીએ તો એમને કહે છે કે 15 તારીખ એવા સ્ટુડન્ટને હતું જે લોકો લઈ ના શકે, ડોક્યુમેન્ટ પહોંચી ના શકે, એના માટે 15 તારીખ હતું. પણ એવું કંઈ નહોતું. આજે 15 તારીખ હતું, બધા સ્ટુડન્ટ માટે હતું અને મેન્શન બી કરેલું હતું. એમને મેલ આવેલું છે, મેલમાં મેન્શન કરેલું છે કે 15 માર્ચ સુધી જો તમે માઇગ્રેશન સબમિટ નહીં કરો તો તમને એક્સટર્નલ એક્ઝામ આપવા નહીં આવે. પણ આ તો ઇન્ટરનલ ચાલી રહ્યું છે, આ તો 30 માર્ક્સનું ઇન્ટરનલ એક્ઝામ છે, એમાં એ વિદ્યાર્થીને રોકી દીધા છે. અને 500 જેવા વિદ્યાર્થીઓ જે લોકો આજે બી માઇગ્રેશન લઈને આવ્યા હતા 5-5, 6-6 કલાક સુધી એ લોકો લાઇનમાં ઊભા હતા. 400થી 500 વિદ્યાર્થીઓની વચ્ચે એક જ સ્ટાફ, એક વિદ્યાર્થીઓને કેટલું ટાઈમ લગાય? આવા તાપમાં, આવા ગરમીમાં 500 વિદ્યાર્થીઓ લાઇનમાં ઊભા હતા. એમાં કોઈ સગવડ વ્યવસ્થા નહીં, પાણીની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, પાણીની પરબ બી અમે કરીને આપ્યા. એવી રીતે મિસમેનેજમેન્ટ જોવામાં મળે છે. અને જ્યારે અમે ડીનને વાત કરીએ, ડીન કહે છે એડિશનલ એક્ઝામ તો છે જ ને, પણ એડિશનલ એક્ઝામની વાત કરવામાં આવે તો એડિશનલ એક્ઝામમાં સિલેબસમાં બી વધારો કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થીઓ જે પહેલાં ઇન્ટરનલ અત્યારે આપશે એ લોકો 2 યુનિટ ભણશે, 2 યુનિટનું એમાં પૂછવામાં આવશે. અત્યારે એડિશનલ પૂછવામાં આવશે, એમાં 3 યુનિટ આવશે. તમને લાગે છે કે વિદ્યાર્થીઓ જોડે જે એજ્યુકેશનમાં છેડા થઈ રહ્યા છે અને એ લોકો પર ભવિષ્ય અગ્રહ મુકાઈ ગયો? હા, એટલા માટે વાત કરવામાં જે 500 વિદ્યાર્થીઓ નથી આપ્યા, ઓલમોસ્ટ બહારના જ વિદ્યાર્થીઓ છે. જે બહારથી એમએસ યુનિવર્સિટી, આટલી મોટી નામ છે યુનિવર્સિટીનું, એના ઉપર વિશ્વાસ રાખીને એ લોકો આ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા આવે છે અને એમની સાથે આવી રીતે વર્તન થાય એટલે એમની જોડે છેડા થઈ રહ્યા છે એમના ફ્યુચર સાથે. જો ઇનકેસ આ લોકો સાથે અત્યારે આવી પરિસ્થિતિ છે તો આગળ એ લોકોને યુનિવર્સિટી ઉપર વિશ્વાસ બી નહીં રહે. दूंगी कि आप प्रोसेस जानना चाहते हैं और आपके माध्यम से प्रोसेस मैं बच्चों तक और बच्चों के पेरेंट्स तक भी पहुंचाना चाहती हूं. जब से हमारी ऑनलाइन प्रक्रिया एडमिशन की शुरू हुई है, बच्चा रजिस्टर करता है, फिर उसके बाद उसका वेरिफिकेशन ऑफलाइन ऑनलाइन 2 तरीके से हुआ था. 2021-22 में ऑनलाइन हुआ था और ऑफलाइन जो था 2022-23 में हुआ था. और वहाँ पे उस वक्त उनका जो कागज़ होता है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि इतने समय के अंदर, दैट इज़ 6 मंथ्स के अंदर, उनको जो है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, उनकी मार्कशीट्स, साथ में थैलेसीमिया रिपोर्ट, है ना, दूसरे कागज़ सबमिट करने होते हैं. जो बच्चे ये सारे कागज़ समय पे कर देते हैं, जो सॉफ्टवेयर है जिसको MSUIA सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो जो है उनको कैप्चर करता है और हमारा एकेडमिक सेक्शन जो है उनको अप्रूव कर देता है. जो बच्चे नहीं करते हैं उसको वो प्रोविजनल अप्रूवल देता है, क्योंकि हम 6 महीने तक बच्चों को टाइम देते हैं. फिर पिछले सेमेस्टर में जो इसका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम हो चुका है, जिसकी परीक्षा फल आने की तैयारी में है, उस वक्त भी सीट जनरेशन का इशू आया था और इन बच्चों को उस वक्त भी बताया गया था. इनके बच्चों की जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने भी इनको जो है ना अलग से, अकेले में, ग्रुप में, कई माध्यमों से उनको बताया. हमारे यहाँ से PPTs भी जाते हैं कि आपका एडमिशन का जो प्रोविज़न होता है वो इस तरीके का होता है. फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पोर्टल महीनों तक खोल के नहीं देखते, अपना कागज़ नहीं करते हैं. अभी कल रात को जो हमने रात के 11-1 बजे तक डाटा जनरेट किया, उसमें पाया कि माइग्रेशन वॉज द इशू, गैप सर्टिफिकेट वॉज द इशू एंड थैलेसीमिया रिपोर्ट वॉज ऑल्सो अ मेजर इशू. ये इशू सिर्फ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ही नहीं है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर भी ये चीज़ आती है. तो जब परीक्षा हम करते हैं, चाहे मिड सेमेस्टर की परीक्षा हो, एडिशनल की हो, है ना, या एंड सेमेस्टर होती है, हमको पता होता है कि इस तरीके के इश्यूज़ हमारे सामने आएंगे. क्योंकि जो बच्चे रेगुलर हैं उनके नहीं होते हैं, जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं वो लास्ट मिनट पे आते हैं.
और फिर हम उनका जो है जैसे जैसे प्रॉब्लम आता है, रिप्रेजेंटेशन आता है उनका, उनके केस की मेरिट देखते हुए हम डिसीजन लेते चले जाते हैं। इस बार हमने जो डिसीजन लिया था उसका रीज़न ये था कि हमको एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 0 एरर पे करने थे और बच्चों को हमने संकेत जो था अभी से नहीं, क्लासरूम से दे दिया था जैसे ही जनवरी के अंदर इनकी टीचिंग शुरू हुई थी। हमारा जो रिज़ल्ट एग्ज़ाम था 13 तारीख का, वो 1 महीने से पहले बच्चों को और टीचर्स को और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स को बता दिया गया था कि ये शेड्यूल है। इनको जो तारीख दी गई थी अर्ली वीक ऑफ मार्च दी गई थी में हुई है, उनको बता दिया गया है, बार बार गया। इसीलिए आप ये देखिए जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो आज जो है ना, उनको लाइन में खड़ा करने के लिए उनसे एप्लीकेशन लिखवा रहा है, उनके कागज़ चेक करा रहा है, क्योंकि ये बच्चे बहुत हेल्प करते हैं जो हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। एक्सटर्नल के लिए ना बोला गया था एग्जाम देने पर, इंटरनल के लिए भी नियम यही है। ये थंब रूल है और ये थंब रूल जो है एग्ज़ाम सेक्शन से और एकेडमिक उससे आता है। ये सब चीज़ें, ये परीक्षा है 30 नंबर की, ये वैसी परीक्षा नहीं है कि आपने लिया इम्तहान और बच्चे को बता दिया। ये वाला मार्क जो है ना एंड सेमेस्टर में जोड़ रहा है ना, 30 मार्क की जो होती है मिड सेमेस्टर या एडिशनल होता है और 70 मार्क जो है एंड होता है। इसलिए इसको एक्सटर्नल और इंटरनल मत बोलिएगा, डोंट यूज दिस टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। मिड सेमेस्टर एग्जाम एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम, तो मिड सेमेस्टर एग्जाम के लिए नोटिस बाहर दिया है। वो सब इनको सबको पता था। ये वो बच्चे हैं जो क्लास में नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक आध बच्चा हो सकता है कि आता हो और उसने कागज़ नहीं जमा किया। मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है जिसमें बच्चों ने मुझे मेल लिखा है कि मैडम घर पे रखा हुआ है, हम घर नहीं जा सके, हमारा कागज़ आ गया था। मेरे पास अभी व्हाट्सएप में भी ये चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैंने उनको लास्ट डेट। हाँ तो ठीक है ना, एडिशनल एग्ज़ाम भी तो 27 तारीख से ही हो रहे हैं ना, तो क्या चिंता है। बच्चे तो एग्ज़ाम देंगे लेकिन सीट नंबर के साथ देंगे, तो उनके मार्क्स जो है वहाँ पे सीधे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। एंड सेमेस्टर की परीक्षा के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा उसमें जो है त्रुटियाँ नहीं रहेंगी, एरर नहीं रहेगा। ये बच्चे वापस मिड एग्जाम देंगे, बच्चे एडिशनल एग्ज़ाम देंगे। जिन्होंने ये वाले फेज़ का नहीं दे पा रहे हैं वो दूसरे फेज़ का देंगे। परीक्षा तो होएगी ना, कोई भी बच्चा बगैर परीक्षा के नहीं रहेगा। और अभी तो आप लोगों के माध्यम से बच्चे सचेत भी हो गए ना, अभी जो है ये लोग केयरलेस नहीं रहेंगे, है ना। अभी इनको पता है थैलेसीमिया कराना है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने थैलेसीमिया नहीं कराया। आपने माइग्रेशन दे दिया, आपने गैप दे दिया, लेकिन आपने जो है ना प्रोविजनली रहा ना, तो सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाएगा। फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तभी तो जो है सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा। 700 बच्चे जिसने एग्जाम नहीं दिया वो वापस 700 बच्चे नहीं हैं एग्जाम देने वाले, 500 भी नहीं है, उससे कम बच्चे हैं। मेरे पास शाम को पूरा एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। है कुछ ऐसा कुछ आता है वो फिगर, उससे कितना होगा? वो फिगर होगा 300 350 बच्चा वापस एग्जाम दे पाएंगे वो? हाँ तो देंगे वो। तो अभी आप कहाँ जा रहे हो, आप एडिशनल एग्जाम में आओगे ना तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि कितने बच्चे जो है ना परीक्षा देखेगा, कितने बच्चे एंड सेमेस्टर एग्जाम देखेंगे। अर्ली वीक ऑफ मार्च दी गई थी, इनको 4 और 5 तारीख तक हर हालत में अपने ये सब सर्टिफिकेट जमा कर देने चाहिए थे। इन्होंने जमा किए भी। उसके बाद जो दूसरा इशू ये आया कि कुछ बच्चों को उनके बोर्ड ने ये कह दिया कि आप जब तक खुद लेने के लिए नहीं आएंगे हम आपको नहीं देंगे। तो बच्चे एकदम जा नहीं सकते थे। उन बच्चों के लिए जो आपको 15 तारीख वाला सामने आ रहा है, ये उन बच्चों के लिए था, ठीक है। लेकिन उसमें क्लियरली था कि आप बैठ पाएंगे, क्लियरली लिखा है। सेमेस्टर एग्ज़ाम का मतलब होता है मिड सेमेस्टर, एडिशनल, और ये क्योंकि सब चीज़ें सीट नंबर से जुड़े होते हैं। अब जिन बच्चों का सीट नंबर जनरेट हुआ और उन्होंने अपनी अटेंडेंस शीट पे साइन किया, पेपर दिया, उनकी कॉपीज़ जब चेक होंगी, उनका मार्क्स होंगे, तो सीट नंबर से एंट्री होगी, सॉफ्टवेयर उसको कैप्चर करेगा। उन बच्चों को लास्ट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन बच्चों को अगर हम बगैर सीट नंबर के बैठने देंगे, है ना, तो उनका कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाएगा और लास्ट में जाके सीधे सीधे उनके रिज़ल्ट पे असर पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर ने अगर वो कैप्चर नहीं किया तो इनका रिज़ल्ट क्या होगा, RR हो जाएगा। जब हमें दिखाई देगा ये बच्चे अपना रिप्रेजेंटेशन फिर से देंगे, फिर हम इनकी एप्लीकेशन एक एक अलग करके भेजेंगे, फिर धीरे धीरे इन बच्चों का रिज़ल्ट आउट होगा। इसका मतलब क्या है कि उनका बच्चों का रिज़ल्ट लेट हो जाएगा। कायदे से सब बच्चों का एक साथ होना चाहिए। तो ये जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की तरफ से एक कॉशन का स्टेप है जिससे कि जो एरर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। मैम, जो बच्चों का एक सवाल बच्चे ये भी उठा रहे कि 15